Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing in our video classes, and you all are learning also the topic that I am discussing with you in the videos. You know that we are doing more about nouns. This is unit 15 of your grammar book. And in this unit, we are studying about genders. We have earlier completed the singular and plural form of nouns that we have completed, which was the first part of this unit. And the second section is related to gender. And we have already started this part. And in this, we have done masculine and feminine genders of humans and animals and birds. We have done many words of these two genders. I have given you few examples of common gender. In today's video, I will give you some more examples of common gender and some examples of neuter gender also. Okay, both I'll give, and then we'll do some exercise based on noun genders. But before starting anything new, let's revise what we have studied in this section. Children, I have told you that in nouns, the genders are basically of four types. Four types of genders I have told you. First one is masculine, second is feminine, third is common gender, and fourth is neuter gender. Now children, this two we have already discussed, and your unit is mostly based on these two genders, and some introduction of common gender and neuter gender I will be giving you, which is mentioned in the unit. Of course it is mentioned in the unit, but exercises are not based on common and neuter gender. So only some information is given. So I will be discussing with you common gender and neuter gender, and I will be giving you the examples also. So these are the four types of genders, noun genders. Masculine genders refers to the gender of male. Males of related to human beings, males in animals, males in birds. All the males are represented through masculine gender. जो ही वाले genders होते हैं, they come under masculine gender. जितने भी हम हिंदी में जिसको पुरुष बोलते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग के भी मेल्स, एनिमल्स के भी मेल्स और बर्ड्स में भी जो मेल होते हैं वो इस मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं. जो लोअर या बहुत स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो हम इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देयर जेंडर. कोई चींटी ही चल रही है तो ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट. तो हम ही एंड शी एंड करके बोल सकते हैं. ओके. Then feminine gender is the gender that represents females. वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है feminine gender. All the females, females in human beings, females in birds, females in animals, all will come in this category of female gender. Then coming to common gender, these two genders I have explained you, and I have given you sufficient examples of masculine and their feminine gender. Common genders are those gender which can be used for both males and females. It can be either used for male, it can be either used for female, or it can be used for both. And in my previous video I have given you some examples. Now in today's video
I will give you few more examples of common gender. तो चलिए common gender start करते हैं. In my previous video, I have given you example of teacher. आपको मैंने बताया था, orally मैं आपको बता देती हूँ. Teacher बताया था. Teacher is a common gender. Why it is common gender? Because male teacher is also called male and a female teacher is also called teacher. जब हम teacher बोलते हैं तो it represents both male and female gender. It can be used for male also, male teacher also, and for female teacher also. Though we call them sir and ma'am, there we differentiate. Masculine gender is sir and feminine gender is ma'am when you go to the school. But sir and ma'am can be used for any person, not only for teacher. But the word teacher, the noun teacher, is a common gender because it can be used for both male and female teacher. Then student. Student is also a common gender. A girl student is also student. A boy student is also student. So this noun student can be used for both male and female students. Then coming to parents. मैंने ये तीनों इसलिए लिए because we relate to that only. हम सबसे ज़्यादा इसी से relate करते हैं, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स. तो सबसे पहले मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिए. पेरेंट्स जो है, पेरेंट भी जो है वो एक कॉमन जेंडर है. दिस वर्ड कैन बी यूज फॉर मेल पेरेंट ऑल्सो एंड फीमेल पेरेंट ऑल्सो. मम्मी के लिए भी पेरेंट यूज कर सकते हैं, पापा के लिए भी पेरेंट यूज कर सकते हैं, और दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो पेरेंट इज अ कॉमन जेंडर. देन आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ बेबी. फीमेल बेबी इज ऑल्सो बेबी, मेल बेबी इज ऑल्सो बेबी. So baby, this noun can be used for both male and female babies. Then I have given you example of friend. Friend is also a common gender. इसमें क्या है, फ्रेंड में क्या होता है कि सारे जितने भी मेल फ्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड एंड फीमेल फ्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड. बोथ can be called friend. This word, this noun friend can be used for both, for male friend and for female friend. ऐसे मैंने आपको इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे. Now I'll proceed with new examples. ठीक है, so let's take one more example, that is leader. Now this word leader is a common gender. Let me write it down. Leader is a common gender. Why? Because same reason, male leader is also called leader and female leader is also called leader. अगर कोई नेता है, कोई लीडर है, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर, हम लीडर की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी एनी लीडर. ठीक है, तो किसी भी फील्ड का लीडर हो. जनरली हम लीडर वर्ड बोलते हैं तो हमको पॉलिटिक्स का ही याद आता है, नेता लोग ही याद आते हैं जो पॉलिटिकली है. बट लीडर क्या, किसी ऑफिस में भी हो सकता है, किसी यूनियन में भी हो सकता है या हो सकती है. तो लीडर कैन बी मेल, लीडर कैन बी फीमेल. दिस वर्ड लीडर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ. देन एक और वर्ड है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, मॉनिटर. है ना, क्लास का मॉनिटर बनना चाहते हैं बच्चे. हम कंप्यूटर के मॉनिटर की बात नहीं कर रहे. क्लास में जो मॉनिटर्स होते हैं ना, जो मैम किसी को या सर किसी को, बच्चे को बनाते हैं कि क्लास का मॉनिटर हो जाओगे. तो मॉनिटर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. मतलब लड़का भी मॉनिटर होता है, लड़की भी मॉनिटर होती है. तो ये भी एक कॉमन जेंडर है. उसके बाद मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ मैं कि डॉक्टर जो है वो जो होता है वो भी कॉमन जेंडर है. हम फीमेल डॉक्टर को भी डॉक्टर बोलते हैं और मेल डॉक्टर को भी डॉक्टर बोलते हैं. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रिपोर्टर. ये आपने टीवी में वर्ड सुना होगा ना, रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करते हैं. तो रिपोर्टर्स जो होते हैं, जो न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर. जो फीमेल रिपोर्टर होगी उसको भी हम रिपोर्टर कहेंगे, और जो मेल रिपोर्टर होता है उसे भी हम रिपोर्टर ही कहते हैं. बोथ आर कॉल्ड रिपोर्टर्स. दोनों को ही हम रिपोर्टर कहते हैं. देन है सिंगर.
ये भी एक कॉमन जेंडर है। फीमेल सिंगर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगर एंड मेल सिंगर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगर, बोथ आर कॉल्ड सिंगर ओनली। तो ये जो वर्ड है सिंगर, ये मेल और फीमेल दोनों सिंगर के लिए यूज होता है। जो गाना गाते हैं, लड़का अगर गाना गा रहा है तो भी सिंगर है, लड़की अगर गाना गाती है वो भी सिंगर है, ठीक है। तो बोथ कैन बी कॉल्ड सिंगर, बोथ आर कॉल्ड सिंगर। जो भी गाना गा रहा है वो सिंगर है, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल है। सेम फॉर डांसर, अगर कोई मेल डांस करता है उसको भी हम डांसर बोलते हैं, और अगर फीमेल डांस करती है तो उसको भी हम डांसर ही बोलते हैं। तो ये जो डांसर है ये भी एक कॉमन जेंडर है जो मेल और फीमेल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट का काम करते हैं, तो आर्टिस्ट एक्टर को भी वैसे बोलते हैं जो एक्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिस्ट का मतलब किसी अपने फील्ड में जो स्पेशलाइज किया हुआ है। तो आर्टिस्ट, जो मेल आर्टिस्ट है वो भी आर्टिस्ट है, और जो फीमेल आर्टिस्ट है उनको भी हम आर्टिस्ट ही बोलते हैं। बोथ आर कॉल्ड आर्टिस्ट। देन वी हैव इंजीनियर्स। अब एक चीज आप नोट कर रहे हो कि हम सिर्फ प्रोफेशंस स्पेशली बोल रहे हैं, जो जॉब होती है ना, प्रोफेशंस को हमने स्पेशली यहाँ पे लिया हुआ है। इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है। सो इंजीनियर जो है वो लेडी अगर है, कोई फीमेल इंजीनियर है उसको भी इंजीनियर बोलेंगे, और अगर मेल है इंजीनियर तो वो भी इंजीनियर है। तो ज्यादातर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रोफेशन देख रहे हैं, क्योंकि वो मेल और फीमेल दोनों पर एप्लीकेबल होता है ये वर्ड। इंजीनियर, आप लड़का इंजीनियर है तो भी इंजीनियर है, और लड़की इंजीनियर है तो भी इंजीनियर है। तो ये इंजीनियर क्या है, एक कॉमन नाउन है। इट कैन बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए ये यूज हो सकता है। देन कम्स लॉयर। अब प्रोफेशन की बात कर रहे हैं ना, तो लॉयर भी क्या है, एक कॉमन जेंडर है। लॉयर, अगर औरत लॉयर होती है, लेडी लॉयर होती है, उसको भी हम लॉयर बोलते हैं, और जो आदमी, कोई मेल अगर लॉयर है तो वो भी लॉयर ही कहलाता है। दोनों के लिए हम ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो नाउन है, ये दोनों जेंडर के लिए इक्वली यूज होता है। मेल लॉयर इज लॉयर एंड फीमेल लॉयर इज ऑल्सो कॉल्ड लॉयर, दोनों ही लॉयर कहलाते हैं, ठीक है। और अगर जो एक अभी मुझसे किसी ने बात की थी, तो एक था टेलर के बारे में, बट टेलर इज नॉट कॉमन जेंडर, क्योंकि ना टेलर का फीमेल होता है। मैं आपको बताऊंगी, पर क्योंकि हम कॉमन जेंडर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए अभी हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि प्रोफेशन की बात आई थी, इसीलिए मैंने ये बोला है। हर प्रोफेशन को इसमें डेफिनेटली नहीं ला सकते हैं कॉमन जेंडर में, लेकिन मैक्सिमम प्रोफेशन इसमें आ जाते हैं। मैक्सिमम जो प्रोफेशन वाले जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर ही होते हैं। अभी कुछ और हम देख लेते हैं। ये कल मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ बताया था, और ये आज बता रही हूँ, 2-4 आपको मैं और बताती हूँ। चलिए तो और ले लेते हैं। एक हो गया मेंबर। मेंबर किसी भी ग्रुप के मेंबर, किसी पार्टी के मेंबर। तो ये जो वर्ड है मेंबर, ये भी एक कॉमन जेंडर है। ये मेंबर वर्ड फीमेल के लिए भी यूज होता है और मेल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो मेंबर इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर। अब सोच रहे हो मैम ने टेलर का नाम लिया लेकिन बताया नहीं, क्योंकि हम अभी मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर नहीं कर रहे थे, इसीलिए नहीं बताया। चलिए बता ही देते। जो टेलर है वो कॉमन जेंडर नहीं है। हम जो फीमेल जो टेलर्स होती है ना, उनको हम टेलर नहीं बोलते, उनको हम ना सीमस्ट्रेस बोलते हैं। मेल टेलर तो टेलर बोलते हैं, जो फीमेल होते हैं उनको हम सीमस्ट्रेस बोलते हैं। तो टेलर इसमें नहीं आएगा। ड्राइवर कैन यूज, ड्राइवर होता है वो हो सकता है। ड्राइवर जो होते हैं, this can be used as common gender. Male driver is also driver and female driver is also called driver. दोनों को ही हम ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। और मेंबर है। फिर एक और वर्ड है जिसमें है एप्लीकेंट। जो
अप्लाई करता है, एप्लीकेंट इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर। ये फीमेल एप्लीकेंट भी होते हैं और मेल एप्लीकेंट को भी हम एप्लीकेंट ही बोलते हैं। अनदर वर्ड इज ऑर्फन। ऑर्फन जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्फन। और अगर फीमेल ऑर्फन है तो भी ऑर्फन है, और अगर मेल ऑर्फन है तो भी उसको हम ऑर्फन ही बोलेंगे। ऑर्फन का मतलब आपको मैंने बताया जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, इधर दे हैव डाइड और दे हैव लेफ्ट देयर चाइल्ड, तो ऑर्फन एज में वो लोग रहते हैं। तो या तो अगर वो लड़का है तो भी वो ऑर्फन कहलाएगा, और अगर लड़की ऑर्फन है तो भी उसको हम ऑर्फन ही बोलेंगे। तो ये भी एक कॉमन जेंडर में आ गया। फिर बात करते हैं हम, जैसे हमने बहुत सारे कर लिए ना, आपके लिए कॉमन जेंडर तो काफी सारे हो गए। लेट्स मूव ऑन टू नाउ न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर के मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। न्यूटर जेंडर की बात करेंगे। न्यूटर जेंडर मैंने आपको मीनिंग बताया था न्यूटर जेंडर का कि जिनका कोई जेंडर ही नहीं होता, ना वो मेल होते हैं और ना वो फीमेल होते हैं। लेट्स सी नाउ एग्जाम्पल। न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? वो जेंडर्स, वो नाउन्स जो ना फीमेल की कैटेगरी में आते हैं और ना मेल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनका कोई जेंडर नहीं होता। उनका जब आप सुनोगे तो आप नहीं बताओ बोलोगे कि वो मेल है कि वो फीमेल है, मतलब उनका कोई जेंडर होता ही नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसा क्या है, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है, न्यूटर जेंडर में आते हैं। इवन जो कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा था एक बार, जो हम कलेक्शन को नाम देते हैं, वो सारे भी इस कैटेगरी में आते हैं। जितना जो कलेक्टिव नाउन के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड, वो इसमें आता है। जैसे कि अब मैंने बोला बंच, तो बंच क्या है? बंच इज अ न्यूटर जेंडर, बंच का कोई जेंडर नहीं है। ग्रुप, ग्रुप का कोई जेंडर नहीं होता है। क्लास, क्लास का कोई जेंडर होता है? नो। तो जितने भी ये कलेक्टिव नाउन्स हैं वो क्या होते हैं, वो सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। उसके अलावा जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, मतलब वुड है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें भी मटेरियल नाउन जितने भी हैं वो भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। उसके अलावा आपने ये वर्ड नहीं सुना है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, द वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि जो हम किसी क्वालिटी को जो हम नाम देते हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फीलिंग्स को जो हम नाम देते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अपनी किसी फीलिंग को, अपनी किसी क्वालिटी को हमने कोई नाम दिया है, अपने फीलिंग्स वगैरह को, दैट कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, लव हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, इनका कोई जेंडर नहीं होता। तो ये क्या है, आते हैं न्यूटर जेंडर में। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने बोला आपको क्लास, क्लास जो है वो एक न्यूटर जेंडर है, ठीक है, क्लास का कोई जेंडर नहीं होता। फिर जैसा मैंने आपको बताया अभी, चेयर, गोल्ड, सिल्वर, वुड, जो भी आप नॉन लिविंग थिंग देख रहे हो बेसिकली वो सारे क्या है, न्यूटर जेंडर है। अब ये मार्कर है, इसका कोई जेंडर है, ये मेल है कि फीमेल है? नहीं है, तो ये भी न्यूटर जेंडर में आ गया। पेन, ओके, मोबाइल, लैपटॉप, टेबल, ऑनेस्टी, लव, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, न्यूटर जेंडर में आती हैं। क्योंकि अब ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सारे नॉन लिविंग थिंग्स को सोचने लगे। आपकी इसमें बुक्स आ जाएंगे, ठीक है, बुक्स है,
आपकी जो नोटबुक्स है, वो सब क्या है, न्यूटर जेंडर है, इनका कोई जेंडर नहीं होता। फैन, अब फैन को क्या आप बोलोगे, वो मेल है कि फीमेल है, नहीं पता है ना। तो ये जितने व्हीकल्स हैं दे आर ऑल न्यूटर जेंडर। अगर आप कार या बस बोल रहे हैं, मतलब कार, बस, ट्रेन, ये सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। ना ये फीमेल होते हैं ना ये मेल होते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, फिर मतलब मेरे मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको पता चल गया कि जितने भी मटेरियल की चीजें बनी होती है, जैसे गोल्ड मैंने बताया, सिल्वर बताया, डायमंड बताया, ये सारी जो चीजें हैं, मटेरियल्स जो है वो सारा क्या है, न्यूटर जेंडर है। उसके अलावा फीलिंग्स को जो नाम दिया है वो न्यूटर जेंडर है। जो कलेक्टिव चीजों को हम नाम देते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसको टीम बोलते हैं ना, टीम, ग्रुप, क्लास, ये सब भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। सो लिस्ट, अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो यू विल हैव ऑल द नेम्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको, और आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए न्यूटर जेंडर के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now we'll move on to exercises based on genders. Gender से related कुछ exercise हम करेंगे। एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी है उसको कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी मैं आपको करवाऊंगी। Complete the pairs. First exercise that is given is, एक तो दिया है राइट द मस्कुलाइन फॉर एम फॉर मस्कुलाइन एंड एफ फॉर फेमिनिन। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। यू व्हाट यू हैव टू डू, you have to write M if it is a masculine gender and you have to write F if it is a feminine gender. इस एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ, you have to identify, yes, you have to identify whether the noun which is written is a masculine gender or a feminine gender. ये आपको पता करना है। जो आप अभी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मैस्कुलिन जेंडर है कि वो फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर and F for feminine gender. इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट लिखा। राइट M for masculine gender and F for feminine gender. अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, फ्यू जेंडर्स आई विल राइट एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट अकॉर्डिंगली। ओके, फर्स्ट वन इज प्रिंसेस, देन ड्रेक, nephew, vixen, bull, tiger, actor, ram, madam, hero,
करते हैं, फिर बाकी का देखते हैं। पहले इतने तो हम कंप्लीट कर लें। फर्स्ट जेंडर इज प्रिंसेस। प्रिंसेस। नाउ दिस जेंडर इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। क्या है प्रिंसेस? प्रिंसेस इज अ फेमिनाइन जेंडर। यस, तो यहां पर हम लिखेंगे एफ, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है। इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? प्रिंस। प्रिंस इसका मैस्कुलिन जेंडर है, बट दिस इज अ फेमिनिन जेंडर, सो ये है प्रिंसेस। देन ड्रेक। ड्रेक इज अ मैस्कुलिन जेंडर। क्यों? इसका फीमेल होता है डक। डक इसका फेमिनाइन जेंडर है, तो ये है मेल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर है। वी विल राइट एम, एम फॉर मैस्कुलिन। देन वी हैव नेफ्यू। नेफ्यू इज अगेन अ मैस्कुलिन जेंडर। दिस इज अ मैस्कुलिन जेंडर। क्यों? इसका फेमिनिन जेंडर नीज होता है और ये है मैस्कुलिन। नेफ्यू इज मैस्कुलिन जेंडर। देन वी हैव विक्सन। डू यू रिमेंबर विक्सन इज अ मेल और फीमेल फॉक्स? मेल फॉक्स और फीमेल फॉक्स? विक्सन इज अ फीमेल फॉक्स को बोलते हैं। सो इट इज एफ। मेल फॉक्स इज फॉक्स एंड फीमेल इज कॉल्ड विक्सन। ठीक है। Then another one is bull. Bull is very easy, you know that it is a masculine gender. इसका female gender है, feminine gender है cow. Then we have tiger. Tiger is again a masculine gender. इसका feminine gender होता है tigress. Tigress feminine gender होता है. Tiger is a masculine gender, so we will write M. Next is actor. Actor is a masculine gender. इसका feminine gender actress होता है, so this is male and masculine gender. Next is ram. Ram. Yes, ram is a masculine gender. जो sheep होता है, male sheep को ram बोलते हैं और female को ewe बोलते हैं, E-W-E. ewe जो female sheep है और जो male sheep होता है उसको ram बोलते हैं। तो ये क्या है? masculine gender है। Next is ma'am या madam बोलते हैं और ये तो बहुत easy है, ये सबको पता है कि madam is a feminine gender. नेक्स्ट इज हीरो। हीरो क्या ये न्यूटर जेंडर है? क्या ये कॉमन जेंडर है? नहीं, ये मैस्कुलिन जेंडर है। हीरो इज अ मैस्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या है? आपको पता है ना? हीरोइन। हीरोइन इसका फेमिनिन जेंडर है, तो हीरो जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है। देन कम्स क्वीन। कुछ लोग क्यून बोलते हैं, विच इज रॉन्ग, दिस प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। क्यून नहीं होता, इट्स कॉल्ड क्वीन। क्वीन, बट वेरी ऑफन आई हैव हर्ड चिल्ड्रन यूजिंग क्यून, नॉट क्यून, Q-U-E-E-N, नॉट क्यून, इट इज क्वीन। क्वीन एंड क्वीन इज अ फीमेल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर है क्वीन। ठीक है। मेल इसका होगा किंग। जो शी कैट होती है ना, जो फीमेल कैट, उसको भी क्वीन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रानी को आप बिल्ली बोलोगे। ठीक। जो फीमेल कैट्स होती हैं उनको भी क्वीन बोलते हैं और मेल कैट को टॉम बोलते हैं। मेल कैट टॉम, फीमेल कैट क्वीन, बट किंग का ऑपोजिट जेंडर क्वीन होता है। फिर है हेन। हेन क्या है? फीमेल है। इसका मेल कॉक या रूस्टर भी बोलते हैं और कॉक भी बोलते हैं। तो ये अगेन हेन जो है वो फीमेल जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। यू कैन आई विल बी असाइड एंड यू कैन गो थ्रू
do it. Princess, female gender. Drake, male. M, masculine है. Nephew is masculine gender. Vixen is again female gender. Then bull is masculine gender. Tiger is masculine gender. Actor is also masculine gender. Ram again is a masculine gender. Then ma'am, yeah, madam, that is feminine gender. Hero is masculine gender. Queen is feminine gender and hen is again a feminine gender. तो ये हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया, बट वी हैव अ फ्यू मोर एक्सरसाइजेस टू बी डन, जिसको हम करेंगे पर आज नहीं करेंगे. आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. गो थ्रू इट, लर्न इट वेयर एवर यू हैव टू लर्न. जो जो लर्न करने की चीज़ है उसको लर्न कीजिए, और जो हाँ समझना है वो उसको समझने की कोशिश कीजिए. If you have any doubt, you can clear that. Okay, so we'll meet in the next video. Thank you.